औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are doing well. Today is your lecture number 1 for this month of computer science, and we will start a new chapter, that is chapter number 2, programming in C. SLOs for the chapter are: you will came to learn about the computer programming languages and their types, and about the characteristics of these languages, how they are differ from each other, and about the header files and the types of header files, about the typecasting, about the structure of C program, and the rules for specifying the variable name will also be discussed in this chapter. Or then you will also study about the syntax and semantics and their differences. So here comes the introduction of this chapter. This unit provides you the basic knowledge about the computer languages that are of two types. The first one is low level language and the second one is high level language, and you will understand their purposes and their characteristics in programming, and the main features of popular high level languages will also be discussed in this chapter. And you students will study that which programming language is suitable for developing a particular type of program, and how we can write, how we can compile the program and the program's execution, and how the programs can be executed or run using IDE. IDE is basically the integrated development environment that explains how a program is written using a user-friendly interface, that is GUI, graphical user interface. So come to the topic number 1 of this chapter, that is introduction to computer programming. Introduction to computer programming. Computer programming is the process of writing a computer program in computer language to solve a particular problem. Computer programming basically ऐसा process है जिसकी वजह से आप कोई भी program लिखते हो using any type of computer language to solve any type of problem. ठीक है, आप कोई भी जिस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिदम्स लिखते थे, वी हैव डेवलप्ड द फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. Now it comes to write a program to solve a problem. So that process of writing the programs in computer language is known as the computer programming. So computer programs controls the operation of a computer and it is developed in computer language to perform a task. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है कि सारी के सारी जो ऑपरेशंस हो रही होती हैं उस टाइम पे कंप्यूटर के अंदर, वो सारी की सारी क्या करता है, कंट्रोल करता है. लाइक आप अगर सिंपली क्लिक भी करते हैं ना कंप्यूटर पे टू सेलेक्ट समथिंग, तो उसकी बैक एंड पे भी कोडिंग हो रही होती है, प्रोग्रामिंग हो रही होती है, राइट. एंड वो स्मॉल एक्शन जो आप लोगों ने किया होता है, वो स्मॉल ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म किया होता है, वो आपको देन आउटपुट देती है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कोड दैट इज़ डन बिहाइंड इट. एंड इट वॉज डेवलप्ड इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म अ टास्क. के जिस तरीके से आपकी बुक्स होती हैं, कुछ बुक्स आपकी इंग्लिश में होती हैं एंड सम आर इन उर्दू लैंग्वेज एंड सम ऑफ दैम आर इन अरबिक्स. सो इस तरीके से हर एक चीज़ की एक लैंग्वेज होती है. जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनके थ्रू आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, राइट. And therefore it is essential for students to learn computer languages to solve various problems. इसीलिए ये स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी होता है, एसेंशियल होता है कि वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस को लर्न करें एंड अंडरस्टैंड करें ताकि वो जो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें. So computer languages are also known as programming languages. Now the question is, what is programming languages? The answer is very simple, that computer languages are also known as programming language. कि जितनी भी कंप्यूटर की languages होती हैं are also the programming languages. So now computer program आपके पास क्या था, any type of instruction or set of instruction that is given to the computer to perform a task and to get the output from it.
सो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, इज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स। इसमें भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स ही आती हैं, लेकिन उसको क्या होता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी आती हैं। ठीक है, वो किस में लिखी आती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी आती हैं, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड अचीविंग स्पेसिफिक रिजल्ट्स। अब हर प्रोग्राम से आप हर टाइप का आप रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते। लाइक अगर आप उर्दू की बुक में से अगर इंग्लिश का कोई काम ढूंढना चाहें तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस पर्पज़ के लिए जो चीज़ होती है हमें उसी के लिए वो चीज़ यूज़ करना होती है। तो अगर आप टेबल का प्रोग्राम लिख रहे हैं, कभी भी आप उसमें से फैक्टोरियल नहीं फाइंड कर सकते उस चीज़ का। जिस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग एल्गोरिदम्स लिखते थे, तो हम जिस चीज़ का लिख रहे होते थे हमें उसी टाइप का ही रिज़ल्ट मिलता था, राइट। एंड अब कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप एडिशन का लिखें तो यू गॉट द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन, नो। सो ये लॉजिकल एरर हो सकता है, बट ये कंप्यूटर की तरफ से एक एरर कभी भी नहीं हो सकता। So, computer program is a set of instructions or statements written in programming language to solve a particular problem and achieving specific results. So, any task performed by a computer is controlled by a set of instructions that are executed by the microprocessor. जिस तरह से मैंने आपको बोला है कि आप सिंपल सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, दैट यू क्लिक्ड ऑन योर डेस्कटॉप टू सेलेक्ट समथिंग। आप कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपली क्लिक भी करते हो, तो उसके बैक एंड पे भी काफ़ी कोडिंग हो रही होती है। तो कोई भी ऐसा काम जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो इंस्ट्रक्शंस की बेस्ड पे ही होता है। ठीक है, तो उसको जो एग्जीक्यूशन उसकी जो कर रहा होता है, दैट इज़ द माइक्रो प्रोसेसर इंस्टॉल्ड इनसाइड द CPU। ठीक है, वो माइक्रो प्रोसेसर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा होता है। A large variety of programming languages have been developed for writing computer programs to use the computer as a possible solving tool। कि बहुत सारी जो है आपके पास अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, एज अ टूल यूज़ की जाती हैं आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं। कि कुछ उन्होंने कैटेगराइज कर दी इसको कि इस तरह की अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप अगर इस लैंग्वेज में करेंगे तो इट विल सूट्स द बेस्ट। एंड ईच स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। हर एक जो स्टेटमेंट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसका अपना एक सिंटैक्स और एक सिमेंटिक होता है। सिंटैक्स इज़ दैट रूल अकॉर्डिंग टू विच you performed the task, and semantic is that statement you use to write that program or that instruction.